Hello. Are we good to go? Okay. Hello. May I? Hello. Wait a minute, Alia. Are we good to go? We are on recording. Yes, we can proceed. Hello, good evening, everyone. I'm Mishita Sharma, and I welcome you all on behalf of Vichar Manthan. Vichar Manthan is an organization which aims to bring practical and unique approach towards the contemporary issues. Its objective is to spread awareness in the society. And in the light of the objective of Vichar Manthan, we have started with our new series, which is Charcha Let's Talk. चर्चा लेट्स टॉक एक टॉक शो है जिसमें हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में, करंट प्रॉब्लम्स के बारे में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसके डिस्कशन से हमें जो हमारा गोल है इट इज़ टू एक्वायर नॉलेज एंड अवेयरनेस. तो इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. And it gives me immense pleasure to announce the guest for today. We have Dr. Deepak Ojha with us. Sir is working as an orthopedic surgeon from last 15 years, and for last 1.5 years, sir frontline as a frontline warrior, corona warrior काम कर रहे हैं, पूरी society को serve कर रहे हैं. A big salute to you, sir, and every other doctor like you. We owe you so much. Thank you for doing all the needfuls. Thank you for joining the show, sir. Before proceeding, I would request everyone to introduce themselves. So please, विचार मंथन के members अपने आप को introduce कर दें. Good afternoon, sir. I'm Alia Khan, and a member of Vichar Manthan. Good afternoon, sir. This is Aviral Jain for Vichar Manthan. Hi, Aviral. Good afternoon, sir. This is Nana Mishra from Vichar Manthan. Hello, Nana. Hello, sir. This is Pooja Ratnani from Vichar Manthan team. Hello, sir. This is Praveen Mishra from Vichar Manthan. Hello, sir. This is Prajwal Maghi from Vichar Manthan. Hello, sir. I am Mishita Sharma from Vichar Manthan. I would also like to welcome all those people who have joined today. Thank you for joining, and I request you all to keep your videos and audio switched off, and please write your queries and questions in the text box below. Thank you. Sir, with your due permission, can we start with the series? Yeah. Good evening, everyone, and thank you so much for the appreciable words. Thank you, sir. You deserve it all. So, first question to you is, dealing with the crisis is same for all of us. Like, we are from different fields, and you are a frontline warrior. So, how difficult it is for you to, handle all the situations, and what is the stand of all the doctors on this crisis, this pandemic? Actually, we are going through a very different scenario as per the Indian healthcare sector is concerned. We are having a population of more than 1,3,800 crores, and a pandemic growing with this much speed is very dangerous to our society. Corona is not a very deadly disease, but the percentage of the serious cases, whatever they are 1% or 2%. Since the spread is so high that even the 1% or the 2% of the total population is a very large number. And this is the major issue what we are facing today.
Suppose if you are having a simple fever and if you are not getting a paracetamol, then that fever will make all the bad things to you. Similarly, the same thing is happening here. We are having the facilities to treat the COVID. We have the facilities to treat the pneumonia, which is the major complication of a COVID. But because of the large number of patients getting infected and getting serious at a particular point of time, and this number is overburdened, and this number is outreaching the number of the infrastructure what we have in the hospitals, and hence the whole system is collapsed. The whole system is suffering. Just the very large number of patients at a particular point of time at a particular place, and since this spread is very large, this whole graph is rising day by day, and this is the only issue. Corona, the mortality of the corona is 1%, but a hospital of 100 bed is having a patients of number 500 on its gate. Then those 400 patients are getting all the complications just because of not getting treated because of the lack of resources. And that is the main protocol that World Health Organization has declared last year, just to cut short the number of cases at a particular point of time at a particular place. And the whole scenario and the whole program and the story of social distancing, masking, this is not to prevent you from corona. This is just to prevent the large number of cases at a particular point of time. And since today we are in a community spread, so we can't control this. We will have to suffer. We will have to, as much as possible, we have to control. And the whole thing and the whole burden is on the healthcare staff, police staff. And it's a very depressing situation nowadays. But although by all the facilities, all the available resources, we are trying to manage the situations by the virtual communication, by physical communication. But still, we have to make the people aware so that they will not just, most of the patients today nowadays, they are just taking their self-medication. They are treating themselves by all those prescribed medicines, azithromycin, doxycycline. There is a WhatsApp message circulating all the way. People are thinking that we just take the medicines and they are resting in their homes that my COVID is negative, my rapid test is negative, we are not having corona, I'm not having corona. And they are just trying to act like that ostrich in the jungle who puts his neck in the ground and thought that the lion will not catch him because I'm in the ground. But he forgot that he is resting and he is well available to the lion. So the awareness is the biggest thing that we have to circulate at this point of time. And this is the only thing that a non-medical person can do, is to aware himself, aware to not get infected. And if get infected, diagnose it early, manage it early, and to avoid the complications. So this is what we have to do and what we are doing, awareing people, treating people, and bearing all that burden. And we are just passing it, waiting for the rest of the things that God will come and. Hello, am I audible? Yes, sir, you Hello? are audible. Yes. Yes, sir. This is what happening all the time. We are every day it's a new plan to. Hello. हेलो Yes, Avril, please continue what you were saying. सर मैं ये कह रहा था, अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर ले तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि आपकी ऑडिबल मतलब वॉइस हम लोगों को बहुत कम आ रही है और जो रिकॉर्ड होगी उसमें भी कम जाएगी, तो थोड़ा अगर ईयरफोन्स का कुछ हो सके तो मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ यार, ये क्या यूज नहीं हो रहा क्या ईयरफोन? एक सेकंड। तो सर एक्चुअली आपकी वॉइस मतलब बहुत स्लो आ रही है, तो रिकॉर्डिंग में जो जाएगी वो भी स्लो जाएगी, तो शायद हटा रही है बस। मे बी ये शायद मास्क, बट मैं आपको मास्क हटाने के लिए कह नहीं सकता। हेलो। यस सर, अभी भी Yes, ऐसे ही है sir. सर, मतलब ज्यादा कुछ
probably it is because of mask, but no issues. You have to wear mask. You are in the hospital, I guess. अब आ रही है आवाज, सुन पा रहे हैं? हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, अब आ रही है आपकी आवाज. आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. सर अब आपकी आवाज क्लियर है सर, अब थोड़ा सही। आप सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ सर. यस सर। So please continue. सुन पा रहे हैं ना आवाज मेरी? Am I audible? Okay. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. So this COVID pandemic ये सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज? Yeah. Yes, sir. So this we are going through a very depressive phase. Even the doctors, patients, their attenders. It's a very depressing phase for all of us. People are neglecting their disease. They're coming to us at their 10th to 12th day when they have their all the lungs involved. All the metabolic complications are overgone, and by that time we are not able to put everyone in the ICU. And this whole thing is getting continued. We are managing anyhow to cope up with all these situations. Meanwhile, our near and dear ones are also getting affected. So we have to make ourselves very psychologically confident. Somehow, by any means, whatever we can do, we have to just do to make ourselves safe, less fearful. We can act and we can make our mental balance should be stable so that we can take decisions in a proper way. This all is happening simultaneously and it's endless. I can. Hello. Yes, sir. I'm done with my first question, I think. Okay. Mental state and all this coping of capabilities will be continued. Who else want to question? Yeah, I want to ask. Hello. Yes, please, Alia, continue. Yeah. So my question is, what should I do if I've been exposed to someone who has COVID-19? Like, what sort of precaution I must take to just overcome all those fears? Are you able to understand my question? मतलब आप कैसा? मतलब, Yeah, what you should can I just repeat your question, please. exposed to someone who has COVID-19? So what sort of precaution मुझे लेना चाहिए? मतलब हम सबको लेना चाहिए. देखिए प्रिकॉशन एक्चुअली क्या है, हम लोग अभी एक ऐसी सिचुएशन में गए हैं क्योंकि जो 80% पेशेंट्स हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक. तो आप किसके कांटेक्ट में आते हैं और कौन कोविड पॉजिटिव है ये अगर आपको पता है तो फिर आप एक प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि आप अपने आप पे ऑब्जर्वेशन रखें और कुछ एक प्रोफाइल एक्सेस ले सकते हैं. आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा. एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कोविड-19 आप सब लोगों को समझा दूँ ताकि आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से और रिफाइंड हो जाएं. कोविड होता क्या है? कोविड इज अ रेस्पिरेटरी वायरस डिसीज. एक वायरस है जो कि किसी के भी छींकने खांसने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू आपके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है. डे 1 जब वायरस आपके अंदर गया, आपके नीजल कैविटी और जो नाक के मुंह के रास्ते से वो आपके अंदर चला गया रेस्पिरेटरी ट्रैक. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5. डे 5 तक आपको कोई भी सिम्टम नहीं है किसी को. इस पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वायरस अंदर गया, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करके और फिर आपको वो आगे इफेक्ट करेगा. डे 5 के बाद आपको हल्का फुल्का कफ फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे. तो वो जो सिम्टम होंगे वो इतने माइल्ड होते हैं कई बार कि आदमी अवॉइड कर देता है. ठीक, उस सिम्टम के बाद फिर वो सिम्टम्स और आगे बढ़
रहेंगे और वो आपके नीजल एरिया और जो नेक का एरिया है वहां से होता हुआ वायरस आपके फेफड़ों तक जाएगा। फिर वो फेफड़े बॉडी के बाकी हिस्सों में जाके अपने आप को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही वो वायरस आपके अंदर गया और आप इस बात से अनअवेयर हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही अगर उससे आप अवेयर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि वायरस जब आपके अंदर गया तो वायरस आपके अंदर मल्टीप्लाई कम करे, इसको बोलते हैं वायरीमिया। तो वायरीमिया अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होगा तो वायरस आपके नाक से, मुंह से होता हुआ फेफड़े में, बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, मसल्स में, जीआई ट्रैक में, पेट के सब जगह चला जाएगा वायरस। और फिर उसके बाद वो अपने इफेक्ट शो करेगा जिसमें कि छोटे छोटे फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, जैसा कि होता है कफ, कोराइजा, हल्का फीवर आएगा आपको। फिर डे 6 और 7 से बॉडी अपनी सेंसिटाइज हो जाएगी वायरस को लेके और फिर वो उससे लड़ने के लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी। एंड फ्रॉम डे 9 ऑनवर्ड्स वायरस विल स्टॉप मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मली इट हैपन्स कि 9वें दिन के बाद वायरस मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है। अब बॉडी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर चुकी है और 9 दिन बाद जो बॉडी है, अगर एक हेल्दी व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, 9 दिन बाद वो वायरस से लड़ने की कोशिश करती है और फिर उस वायरस को मारती है। अब चालू होता है पूरा प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। जो जो वायरस के इफेक्टेड सेल हमारी बॉडी में, जहां जहां वायरस है, उन सारे सेल्स को, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है। उसे लगता है कि ये किसी और बॉडी का पार्ट है और फिर हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है उस पूरे बॉडी के पार्ट को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। सिर्फ और कि हमारे फेफड़े में जिस जिस हिस्से में वायरस रहा था, अब तो वो क्योंकि डीएक्टिवेट हो गया है, लेकिन जहां जहां उसने जगह बनाई थी उस पर्टिकुलर हिस्से को हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है उसको खाने लगता है और यहीं से सारा डैमेज चालू होता है। और फिर जिस जिस हिस्से में वो था उस हिस्से को बॉडी खत्म कर देती है और उतना हिस्सा खराब होता है। जो कि अपनी बॉडी में लंग इन्वॉल्वमेंट या लंग खराब हो गया, सीटी स्कैन में आप लोग देखते हैं, सुनते भी होंगे, तो ये बेसिकली वही। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन है, वो भी ऐसे ही चलता है जैसे आप इन्फेक्ट हुए। अब आपका मेनली ये एम होना चाहिए कि वायरस हमारे मिनिमम बॉडी के पार्ट्स को इन्वॉल्व करे। तो आपकी जैसे किसी के कांटेक्ट में आए, डे 1 मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बंदे के कांटेक्ट में आए जिनसे कि आपका इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है कि हाँ मिल जाएगा। अब उस दिन से ही जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हैं जो अभी प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें कि आप डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो मेडिसिन हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आप ले करके ये कोशिश करेंगे कि वायरस आपकी बॉडी में कम से कम मल्टीप्लाई। 9 दिन का पीरियड आपके पास है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बना रही है, आपको ये करना है कि वायरस आपके अंदर कम से कम मल्टीप्लाई। अब इसमें आप गर्म पानी पीना, भाप लेना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोफाइलेक्सिस। उससे क्या होता है, आप एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं वायरस को कि वो बहुत हेल्दी हैप्पीली डिवाइड करे। तो इसीलिए स्टीम इनहेलेशन, हॉट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। तीसरा, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आप किसी और बीमारी का इलाज करते हैं जैसे कि शुगर, थायराइड, आपको कोई पुराना कैंसर है जिसका इलाज चल रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, मतलब कि कम कर रही है, जिससे कि वायरस से लड़ने में आपकी जो शक्ति है वो कम पड़े, तो उसका आपको मैनेजमेंट करना है। वायरस आज की डेट में जब देख रहे हैं सेकेंड वेव में कि ये शुगर पे डिस्टर्ब कर देता है पूरे जो मेटाबॉलिज्म। तो आप अगर किसी कॉन्टैक्ट में आए हैं तो सबसे पहले प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स चालू कर दीजिए, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, आपको अगर कोई भी दूसरी बीमारी है जिसका आपको इलाज चल रहा है उसका प्रॉपर इलाज लें। कोई आपको अगर पुराना अस्थमा है, सीओपीडी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको मैनेज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको खुद करना है वो है अपने सिम्टम्स को चेक करें। आप अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको बुखार आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से कम जा रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा जा रही तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आपको अगर 6 मिनट चलने के बाद डिस्निया होने लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा सांस लेने में समस्या होने लगी, तो ये अलार्मिंग साइन है। और इवन आफ्टर टेकिंग दैट प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, 5 दिन की मेडिसिन आप ले रहे हैं और ये जो वार्निंग साइंस आपके आते हैं, अगर ये आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अपना बैठ के सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के या वर्सनिंग करने के इंतजार में नहीं बैठना।
तो सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, along with the knowledge and along with the responsibility. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, shall I proceed with my next question? Yeah, sure. Yeah. Am I So audible how? to everyone? Am I Yes, clear sir. with You my are. voice? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir, Yes, sir. you're audible. Yeah. So my next question is, how important and safe is vaccine in the fight of COVID-19? I want to know the importance of vaccine mainly because if I talk about my personal thing, I really don't want to get myself vaccinated. I don't know what was the reason, but maybe it is the distraction which are going on social media sites, like the rumors which The are reason going of on. not getting vaccinated is WhatsApp. Yes, sir. So I just wanted to clear this doubt, and I want some solution from your side. So I will take all of you back to my whole mechanism of virus. But that's what I was telling all of you. वायरस आपकी बॉडी में गया, पहले दिन मल्टीप्लाई किया, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, उसके बाद एक्टिवेट हुआ, 9वें दिन आपकी बॉडी ने इम्यून रिस्पांस जनरेट किया और वायरस को किल कर दिया, और 12वें, 13वें, 14वें दिन वायरस जो है आपकी बॉडी से चला गया. अब इस बीच में जहां जहां वो रह के गया था, वहां वहां अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो पुलिस वाले आएंगे, पुलिसमैन सेल्स आएंगे, वो उसको खा जाएंगे. बोला यहाँ वायरस रहा था, बेकार हो गया, खा जाओ एसएससी को. तो इसमें अपना डैमेज हो जाएगा. अब वैक्सीन से क्या होगा? वैक्सीन एक ऐसा आइटम होता है, वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है, वो वायरस की आइडेंटिटी होती है विदाउट एनी डैमेजिंग कंपोनेंट ऑफ द वायरस. तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम अपनी बॉडी जनरेट करती है 9 दिनों में, अगर उसके पास डे 1 पे ही होता तो वो उस वायरीमिया को ना होने देती. वायरीमिया आप समझ रहे हैं, वायरस का मल्टीप्लीकेशन आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहा था, जिसके लिए कि अपन प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ले रहे थे. अब वैक्सीनेटेड व्यक्ति जो होता है, उसकी बॉडी में इस पर्टिकुलर वायरस से रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो पहले से ही होते हैं. जैसे वायरस मेरी बॉडी में गया, मेरी बॉडी को पहले बता रहे इसको तो मैं जानता हूँ, निकालो वो वाली बंदूक जिससे इससे मार सकते थे, तो अपन उसको खत्म कर देंगे. तो जस्ट लाइक दैट आप वैक्सीनेट होते हैं. वैक्सीनेशन का एक सिंपल सा फंडा होता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले से ही सेंसिटाइज कर देता है वो किसी भी अपकमिंग प्रोबेबल डिसीज के लिए, जो कि अपन प्रोबेबल हैं ही. कोविड की वैक्सीन के टाइम क्या हुआ कि अपना जियो का नेटवर्क बहुत चल रहा था. पुराने जितने भी अपने पैंडेमिक्स हुए हैं उस टाइम पे जियो एक्टिव नहीं था. अभी क्या है, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, हर व्यक्ति हर चीज को अपने लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटीज के अनुसार समझना चाहता है. वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है, जैसे टिटनेस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन आप लगाते हैं, कभी भी आपको कहीं कुछ प्रिक हो जाता है, चोट लग जाती है, उसके बाद भी 1-2 दिन किसी को बुखार आता है. किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर वैक्सीन लगती है, से वो किसी भी तरीके की हो, उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जिसमें कि हल्का बुखार, हल्की हरारत, ये सब तो रहता ही है. इसलिए आप इसको ऐसे मत लें कि ये इसको लगाने से आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अब किसी को थोड़ा सा भी बुखार रहा तो क्या वैक्सीन के पहले किसी को बुखार नहीं आता था? क्या वैक्सीन के पहले किसी को कमर में दर्द नहीं होता था? सब कुछ होता था. तो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सारी वैक्सीन जो हैं ये किल्ड वैक्सीन हैं. जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो भी आपकी वायरल वेक्टर टेक्निक से बनी है, उसमें वायरस नहीं है, सिर्फ उसका कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है. कोविशील्ड भी किल्ड वैक्सीन है. स्पुतनिक वी जो अभी लेटेस्ट रशियन वैक्सीन है वो भी आपकी किल्ड वैक्सीन है, वायरल वेक्टर कंपोनेंट है उसके अंदर. तो इस वैक्सीन के अंदर वैक्सीन की आइडेंटिफिकेशन है, कोविड के आइडेंटिफिकेशन है, ना कि कोविड है. ये बनाया गया है उससे क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन वही दे पाएगा. अब आपकी बॉडी को ये जब सेंसिटाइज कर देगा तो होगा ये कि ऐसा नहीं होगा कि अब आपको होगा ही नहीं कोविड. अब होगा ये कि आपको वैक्सीन लग गया, दोनों डोज लग गए, और 13 दिन के बाद मतलब 2-3 वीक्स के बाद आप जब भी कोविड के कांटेक्ट में आएंगे तो डे 1 पे ही आपके पास उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उस वायरस को कोप अप करने की. तो आपकी बॉडी उसको डे 1 पे ही प्रिवेंट करेगी फ्रॉम डिवाइडिंग एंड फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, और आपकी बॉडी में दूसरी जगह पे फैलने से बचाएगी. तो उससे आपकी बॉडी को कोविड तो होगा, कोविड होगा, कोविड से नहीं बचा सकती, बट वो कोविड 2%, 1% जो सिर्फ वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे थे वो होगा. अब वो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा. एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम वैक्सीनेशन.
वैक्सीनेशन आपको उससे डिसीज से प्रिवेंशन देता है। डिसीज डेडली जो है, आपकी निमोनिया बन जाए, लंग्स कोलैप्स हो जाए, तो सीवियर इलनेस वैक्सीन लगाने के बाद 0.96% पेशेंट्स में है। मतलब रेयरेस्ट है, किसी को भी नहीं है। कभी कोई एक आध कहीं मिल गया, किसी को पुराना कोमॉर्बिडिटी थी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उसके बाद उसको वैक्सीन भी लग गई। अब कोविड नहीं था तो उसको कुछ तो था ही ना, उसके पास अपना प्लेटफॉर्म ही 20% 30% का बचा था बॉडी का। तो वैक्सीनेशन इज मस्ट, and vaccination is the only thing that is going to prevent this human society from COVID. There is no other remedy, there is no other drug, and there is no other method which can prevent you from COVID except vaccination. Otherwise, you will get infected, and if not complicated, then you will get the immunity for a while, not as a vaccination. So vaccination is must. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर चीज से होती है, पैरासीटामोल से भी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सब होता है, बट दैट डजंट मीन कि अगर बुखार लगे तो अपन लोग हाथ जोड़ के बैठे रहे, बोलेंगे नहीं पैरासीटामोल नहीं। और व्हाट्सएप मैसेजेस के पीछे मत पड़िए। व्हाट्सएप मैसेजेस में तो हर व्यक्ति कुछ भी समझ रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स। वैक्सीनेशन इज मस्ट, यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का एक बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं। अपन एग्जांपल ले सकते हैं इजराइल का। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अभी आज की डेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन अपनी पॉपुलेशन में किया है, अराउंड मीटिंग हैज नो लॉन्गर अ लिमिट। तो वैक्सीनेशन इजराइल में 54% हो चुका है पॉपुलेशन का। एक हर्ड इम्यूनिटी का टर्म होता है, हर्ड इम्यूनिटी, HERD, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में ये माना जाता है कि अगर इफ वी विल इम्यूनाइज 65%, 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, तो वो वहां पे जो डिसीज होती है उसका जो प्रेवलेंस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? फिर वही बात, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लेस, so whatever they are we can treat them and send them back to home, so there is no disease. उल्टी दस्त किसी को थोड़ी ना पता चलते हैं, होते हैं लोगों के, सही हो जाते हैं दवाई खा के। अब एक साथ किसी को 1000 लोगों को उल्टी दस्त हो जाए तो पता पड़ जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। किसी कम्युनिटी में 50 लोगों को किसी शादी समारोह के बाद अगर उल्टी दस्त होते हैं तो अगले दिन न्यूज में आता है, बिकॉज दैट इज ए मास कैजुअलिटी। So that is a concern in the corona. We are going through a large number of people getting affected at a particular point of time. And with vaccination, we can reduce it. And with only vaccination, we can reduce it. So there should be no any question that I should get vaccinated or not. Do it at the earliest. So, की रहेंगे होता है, सेंसिटाइज होने के बाद फिर वो अपने आप को डेवलप करता है टू कोप अप दिस आइडेंटिफिकेशन, और फिर उसको वो मारना चाहता है। अब चूंकि वैक्सीन जो होती है वो मल्टीप्लाई खुद नहीं करती है, क्योंकि वो जो वायरस होता है वो डेड स्टेट में होता है, डेड स्टेट में है, जस्ट लाइक वो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है बॉडी को, तो वो खुद तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं, लेकिन वो सेंसिटाइज कर देगा बॉडी को। अब बॉडी जब सेंसिटाइज होती है तो ये वैसा ही सिस्टम होता है जैसे चोट लगने के बाद हमारी बॉडी हमारी उस चोट को सेटल करने के लिए वहां पे रेडनेस, सूजन, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। तो ये जो बॉडी के रिएक्शंस होते हैं इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सेज रहते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, विच आर वेरी रेयर, एंड मे बी इंडियन सेटिंग में लोग इतने रफ एंड टफ होते हैं, अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे लोग बहुत ही लेविश लाइफ जीते हैं। तो इंडियंस तो हैं इतने मजबूत होते हैं कि ऐसी कोई उनको ऐसा नहीं होता। विदेशों में तो लोग मधुमक्खी काटने के कारण भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग हाथ से उड़ा देते हैं मधुमक्खियाँ। तो मतलब बॉडी बहुत रेजिस्टेंस है इंडियंस की, और वैक्सीन इंड्यूस जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं नहीं है, किसी किसी को थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बहुत ओल्ड एज पर्सन हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि जब वैक्सीन की रिएक्शन होती है, वैक्सीन इम्यूनोलॉजिकल जो वो है वो फीवर लाइक सिम्टम आता है, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स टाइप के कुछ केमिकल्स हैं वो निकलते हैं इस पूरे इम्यून रिस्पॉन्स में, तो आपको 1 दिन 2 दिन फीवर लग सकता है,
एज यू सेड कि पीपल द गर्ल्स ऑन देयर पीरियड डेज, उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नंबर ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे अगर लगाएंगे तो 1-2 दिन फीवर थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, बट वो सिंपल पैरासीटामोल खाने से सेटल आउट हो सकता है। उसके लिए आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ऐसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ विद अ लो नॉन स्पाइसी हाई प्रोटीन डाइट। तो जो भी 1-2 दिन का आपको इस तरह का फीवर लाइक सिम्टम आएगा तो वो 500 mg पैरासीटामोल खा के आप उसको सेटल आउट कर सकते हैं इफ देयर। बाकी ऐसा कोई भी इसके अंदर लिटरेचर नहीं है कि वो हो। अच्छा, इसमें क्या है, अपन क्योंकि मास कैंपेन कर रहे हैं तो मास कैंपेन में बड़ा एक सोशल जो साइकोलॉजी होती है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों का, पीपल आर वेरी कंसर्न विद देयर चाइल्ड, सो उनको निमोनिया हो रखा है, बच्चे को कोई बुखार हो रखा है, तो अपन बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना है। तो उसके पीछे ये नहीं होता कि वैक्सीन लगाने से उसको कुछ और हो जाएगा, सिर्फ इसलिए बिकॉज वी आर इन अ कैंपेन मोड एंड इफ बॉय इज हैविंग अ फीवर, उसको अपन वैक्सीन लगाया, फीवर और 1-2 दिन परसिस्ट किया, तो वो उस पूरी कैंपेन मोड पे एक नेगेटिव पब्लिसिटी की तरह रहेगा कि वैक्सीन लगाने से हो गया, तो इसलिए मना कर दिया जाता है। अदरवाइज देयर इज नो एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, नो एनी साइड इफेक्ट, नथिंग इज देयर। आने वाले समय में जरूर जब हम अपना जो टाइम लैप, ये जो एज लिमिट है इसको कम करेंगे, अभी जैसे इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि वो 12 से 15 साल की एज वैक्सीनेट करे, उन्होंने 15 से 45 को भी वैक्सीनेट कर दिया है, तो उसमें जरूर कुछ हो पाएगा। क्योंकि जो एज छोटी, मतलब जैसे 12 से 15 साल, 2 से 5 से 15 साल के बीच के एज लोग होते हैं, इनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एडवांस होता है बच्चों का, तो नेगेटिवली भी एडवांस्ड होता है, पॉजिटिवली भी होता है, तो उनमें हो सकता है आने वाले समय में थोड़े से प्रिकॉशंस और लगने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे हमारी वैक्सीन की जो क्वालिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो आज की डेट में तो अपन बिल्कुल भी, अपन को कुछ नहीं सोचना वैक्सीन लगवाने के लिए, जस्ट जाना है और लगवा। Definitely, sir. Satisfied with the Sir, answer. एडिंग टू द क्वेश्चन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है इसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन्स में एक्चुअली क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन में रिलेटेड टू वैक्सीन और रिलेटेड टू दिस डिसीज? सर, रिलेटेड टू वैक्सीन। रिलेटेड टू वैक्सीन अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपन ने टारगेट में नहीं लिया है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कई बार हाइटेंड होता है, तो जो बच्चे होते हैं, जो अंदर बेबी है, उस पर साइड इफेक्ट्स रहते हैं, और जो प्रेगनेंसी होती है वो एक ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी होती है। नॉर्मली अपनी जो फिजियोलॉजिकल अपना जो बॉडी चल रहा है, वो हमारा जो डेली का रिस्पॉन्स है, वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में प्रेग्नेंट फीमेल में अलग रहता है, और वहाँ पे अपने पास 2 जिंदगियां हैं, तो अपन यही कोशिश करते हैं कि अपन प्रेग्नेंट फीमेल को अभी इन्वॉल्व ना करें, इसलिए अपन ने उसको अलग कर रखा है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वैक्सीन से कोई डैमेज होगा, just because we are in a campaign mode and we don't want any kind of negative news so that the campaign will be altered. So for the sake of this thing only, और हमने सिर्फ ये रखा है कि जो हमारे मैक्सिमम क्रिटिकल इल हो जाए पेशेंट, इनको ना करें, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है। कोविड रिलेटेड बताना। सर, एक अभी एक केस आया था मतलब मेरे सामने, उसमें उन्होंने ये बोला था कि देयर इज अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट और उन्हें कोविड है, और उनका मतलब लेबर पीरियड आ चुका है, मतलब 1-2 दिन में बच्चे की डिलीवरी होनी पड़ेगी, तो सर उस पर मतलब क्या इससे भी बच्चे पे भी साइड इफेक्ट पड़ने वाला है कोरोना का? अभी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का कोई ऐसा लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ है, और अगर इन केस हो भी जाता है तो जो मदर है, मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनेगी वो ब्रेस्ट फीडिंग से उसको मिल सकती हैं। बाकी प्रेग्नेंट फीमेल को और लैक्टेटिंग फीमेल को अपन एंटीवायरल ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, तो इसे ये बहुत रेयर सिचुएशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये। ऐसे केसेस में अपन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं। अगर इन केस जो मदर है वो इन्फेक्टेड है कोविड से और उसका बेबी है वो भी इन्फेक्टेड है कोविड से, तो कोविड एक ऐसी डिसीज है जिसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी 1% है, लेकिन जो मैटरनल हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कि डिलीवरी ड्यूरिंग द लेबर जो कोर्स है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, तो उस पूरी प्रोसेस को सिर्फ डॉक्टर या जो भी जो ट्रीटिंग हेल्थ केयर वर्कर है वो एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके लेबर को कंडक्ट कराता है, डिलीवरी को कंडक्ट कराता है, और फिर ये कोशिश की जाती है क्योंकि मदर अपने पास ही है, फैसिलिटी में है, इंस्टीट्यूट में है, तो अपन उसके कोविड को जितना मिनिमाइज कर पाए विद ऑल दी मेडिसिन, और ये अपन किया जाता है। और जो बच्चा होता है
और उसको मदर से जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी उसको किसी भी तरीके से रोकना नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है इवन दो इफ द मदर इज कोविड पॉजिटिव, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग ना होने के कारण जो सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा वो तो एक पार्ट है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग ना होने के कारण जो माल न्यूट्रिशन, आगे आने वाले समय में उसकी ग्रोथ इम्पेयरमेंट, ये सारी चीजें तो एक जस्टिफाइड फैक्ट है जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अपन रेशो देखेंगे बेनिफिट और लॉस, तो इसमें बेनिफिट ज्यादा है टू कंटिन्यू द नॉर्मल कोर्स ऑफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड केयर विद ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड विद मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब किया जाएगा। अच्छा, मदर अगर कोविड पॉजिटिव है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है वो सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी ही बचती है अपने पास, जिसमें कि अपन पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज वगैरह जो हैं वो पेशेंट को दे दें, और वो भी तब जब अगर शुरुआत के 7 दिनों में अगर हम डायग्नोस कर लें, बिकॉज 9 दिन बाद तो बॉडी एंटीबॉडीज बना देगी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायरल लोड इन द बॉडी, क्योंकि एंटी रेट्रोवायरल जो वायरल थेरेपीज हैं ये तो डेंजरस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है पर प्रोबेबिलिटी फिर भी हो सकती है कोविड के होने की? मोस्टली यही हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि 9 दिन बाद बॉडी इम्यून हो जाएगी, वो वायरस को कट शॉर्ट कर देगी और आपका जो एंटीबॉडी टाइटर है वो नेगेटिव आएगा। होता क्या है, टेस्टिंग का एक मैकेनिज्म अपन समझें, अपन बॉडी में वायरस गया, वायरस मल्टीप्लाई किया, अपन ने नेजल स्वैब लिया, तो पहली गलती तो यही होती है कि सैंपलिंग एरर बहुत बड़ी चीज है, लेने वाला भी डरा हुआ है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, जो ले रहा था पिछले 4-5 दिनों से हो सकता है उसको आज कोविड हो गया हो और आप पहुंचे, उसने पहला ही पेशेंट आप हो, आपके उसने किया, हो सकता है कि स्वैब नहीं आया। कुछ सब्जेक्टिव इश्यूज भी रहते हैं, पेशेंट इतने सेंसिटिव रहते हैं तो नाक में डालने ही नहीं देते हैं, मुंह में डालने ही नहीं देते हैं, तो सैंपलिंग एरर है तो नेगेटिव आ सकता है। दूसरी बात, टेस्टिंग एरर हो सकता है। टेस्टिंग एरर में क्या होता है कि आपका जो कोविड है आपने डे 1 पे कराया ही नहीं टेस्ट, डे 6 पे कराया ही नहीं टेस्ट, आपने कराया डे 14 पे, जब आपको कॉम्प्लिकेशन होने लगा, डिस्निया होने लगा, जब आप वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस करने लगे और आप अपने डे 11 डे 12 ऑफ द कोविड पे हैं, तो वहां पे क्या है, कोविड नहीं है, कोविड के कॉम्प्लिकेशन है आपके पास और आप खोज रहे हैं कोविड, तो ऐसे में अपन के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी डिप्रेसिंग एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग कि जितने भी पेशेंट सीरियस हैं अगर उनका रेशियो आप निकालें, मोस्ट ऑफ देम दे आर नेगेटिव because they have neglected their disease till they get complicated, and after getting complicated they are going to have their testing which should be done 10 days prior. डे 1 पे इन्फेक्ट हुए, डे 6 या 7 पे टेस्ट कराइए, 90% पॉजिटिव आएगा। डे 1 पे इन्फेक्ट हुए, डे 10 तक आप घूमते रहे, यहाँ वहाँ कुछ भी चूरन चटनी खाते रहे, 12-13 तारीख के बाद फिर आप डे 14 डे 13 पे गए तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव टेस्ट इट्स अ डबल साइडेड स्वॉर्ड, मे बी यू आर टोटली डिसीज फ्री or maybe you are COVID free but with the complications of your autoimmunity. Your immune system is acting in a very aggressive way, killing all the tissue and all the cells which are invaded previously by a virus and landing you in a damaged body organ situation like lung damage, body damage and all that, which is indicated in a CRP, C-reactive protein. This is a chemical which is raised in the acute phase reactant in the inflammatory conditions. तो इसीलिए अगर आपका कोविड नेगेटिव है लेकिन आपको सिम्टम्स हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आपको कोविड है। डोंट फॉरगेट यू आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अ पेंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरी बीमारी जिसको थी उसको तो कोविड होके कॉम्प्लिकेट हो ही गया, जिसको शुगर था, डायबिटीज था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, इनको वो वाली बीमारी नहीं होगी, इनको तो कोविड होगा विथ कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए आपको अगर 1% भी सिम्टम है, टेक इट ग्रांटेड कि यू आर हैविंग अ कोविड, गेट योर टेस्ट डन एंड गेट योर होल इन्वेस्टिगेशन एंड assessment done by a
That's a very Trusted man, useful information, sir. Definitely. Definitely. May I ask? हेलो सर, जैसे अभी कोविडिटी की बात हो रही थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ऑलरेडी मतलब ये ऐसे सीरियस हेल्थ कंडीशंस में हैं, जैसे अस्थमा या डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, इनके मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो इन लोगों की मतलब इन लोगों को हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, आपके मेडिकेशन में कोई चेंज की जरूरत है, मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखते हो? एक्चुअली जो आप बता रहे हैं ये डिसीजेज नहीं है, दे आर द कंडीशंस. Diabetes is not a disease, it is a condition of altered sugar level. Similarly, hypertension is not a disease, it is a condition. Cancer is a disease with a chronic condition. तो ये जो chronic diseases होती हैं जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, they are not treated in a day 5, day 10 scenario. They are treated with the whole life medication. तो स्थिति मतलब की कंडीशन जो भी है आपकी डिसीज की, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, और जो भी उसके बेंचमार्क्स हैं जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड टू कंसिडर योर हेल्थ एज अ हेल्दी, तो वहां पे आपका जो भी बेंचमार्क है वो आप सेटल करके रखें. आपका अगर शुगर है तो मेक श्योर कि योर शुगर इज विद इन 150, मैक्सिमम 180 with all medications, and if needed you should change or revise your medication. अगर आपको अस्थमा है तो कीप योर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज डेली, और अगर आपको कैंसर है, कोई और भी डिसीज, जो भी डिसीज आपको है, उस डिसीज को आप कंट्रोल रखिए. उस डिसीज को आप कंट्रोल रखेंगे तो जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक नेचुरल स्टेट में रहेगा. अपनी जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत ही क्लोज वॉच में रखिए, और अपना जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके रेगुलर गाइडेंस में रहिए. और जैसी भी आपको पर्टिकुलर डिसीज है उससे पर्टिकुलर आपको जो रिस्पेक्टेड प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं, क्योंकि अकेला कोविड बहुत कम परेशान करता है. हालांकि अब करने लगा है, जो अपना फर्स्ट वेव थी उसमें नहीं करता था, सेकेंड वेव में करने लगा है अकेला कोविड. लेकिन अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो फिर आपका कॉम्प्लिकेशन का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है. तो इसलिए अपनी जो पर्टिकुलर आपकी बीमारी है उसमें कोई ऐसा अपन वो नहीं कर सकते कि एक कोई दवाई डाल दें अलग से कि हाँ ये खाते रहो आप, बट आपका जो वो डिसीज है उसको मैनेज करके रखिए. बाकी इम्यून के लिए आप इम्यूनिटी के रिलेटेड ये कर सकते हैं कि प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, ओवर डिहाइड्रेशन नहीं होना, ओवर एक्सर्शन नहीं लेना है. ये सब प्रिकॉशंस जो बेसिक लाइफस्टाइल के, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रिकॉशंस हैं, ये ले सकते हैं. ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग जब RT-PCR टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद मतलब पैनिक कर जाते हैं और रश में सारी टेस्ट ले लेते हैं, मतलब मल्टीपल टेस्ट कराने लगते हैं, तो कब हमें CT स्कैन करा लेना चाहिए? देखिए क्या है, बॉडी में वायरस गया डे 1 पे, दोबारा अपन वहीं बैक टू बेसिक्स. डे 1 पे वायरस गया, बॉडी को इम्यूनाइज किया उसने, मतलब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मिला. तो अब डे 5 तक आप कोई भी टेस्ट कराएंगे बहुत रेयरली वो पॉजिटिव आएगा. डे 5, डे 6 पे हो सकता है कि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, RT-PCR भी पॉजिटिव आ जाएगा. तो RT-PCR और ये करा लीजिए. डे 6 के बाद आप अपना CBC करा सकते हैं. डे 7 और डे 8 पे आप अपना डे 7 और डे 8 पे अपना CBC कराइए. और डे 9 के बाद आपका बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, तो डे 9 के बाद CT स्कैन आप करवा सकते हैं. डे 4 पे, डे 5 पे CT स्कैन कराएंगे तो उस पे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं दिखाई देगा, लेकिन डे 9 के बाद जब आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी तो उसके बाद फिर CT स्कैन में चेंजेस और ज्यादा आ सकते हैं. तो डे 3 टू डे 6 आप अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए. डे अपन काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स. एंड सिंस वी आर इन अ कम्युनिटी स्प्रेड फेज ऑफ द कोविड, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि अपन इसके कांटेक्ट में आए. बाकी अगर आप इसको कांटेक्ट की तरह देखें कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी बंदे के कांटेक्ट में आए आप जिसको कोविड था कंफर्म, एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ आपको कोविड ट्रांसमिट हो गया है, तो 5 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया.
उसके बाद आपको डे 1 दोबारा से आएगा जो सिम्टम्स का होगा। उस डे 1 से डे 6 to 7 आप अपना रैपिड एंटीजन करा लीजिए। सबसे पहले रैपिड एंटीजन ही कराना चाहिए, क्योंकि रैपिड एंटीजन अगर नहीं कराएंगे तो RT-PCR 3 दिन बाद आएगा, तो अपना 3 दिन वेस्ट करेंगे। सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए। उसके बाद आप 6 to 7 में अपना CBC कराइए, चेस्ट एक्सरे कराइए और CRP कराइए। उसके बाद डे 7, डे 8 को आप अपना, अगर CBC ऑल्टर्ड था तो फिर CBC दोबारा रिपीट कराइए, CRP कराइए अगर वो 1 या 2 आया था या पॉजिटिव आया था, और उसमें देखिए आपको राइजिंग टाइटर तो नहीं मिल रहा है, वो बढ़ तो नहीं रहा है, वो 10 से ज्यादा तो नहीं है, 10 से कम CRP नॉर्मल कहलाएगा। अगर 10 से ज्यादा है CRP आपका, तो फिर आपको अपना डी डाइमर कराना है। और अगर आपको शुगर है तो शुगर मॉनिटरिंग करिए। शुगर मॉनिटरिंग में ये ध्यान रखना है कि फास्टिंग शुगर कराएं या ना कराएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको अपना जो शुगर चैलेंज है वो कराना है, पोस्ट प्रेंडियल शुगर जो होता है, क्योंकि मोस्टली खाना खाने के बाद ही शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, तो टेस्टिंग का ये हो गया। अच्छा, अगर आपका डे 6 या डे 7 पे आपको कफ रह रहा है, फीवर रह रहा है या कोई भी सिम्टम और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो चेस्ट एक्सरे भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत इजीली हो भी सकता है। 6 to 7 डेज पे कराना है, और फिर डे 8 और 9 पे चेस्ट एक्सरे आप रिपीट करा के प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। और CT स्कैन डे 9 से पहले ना कराएं, डे 10 पे CT स्कैन कराया जा सकता है। ये सारी बातें आपको एक प्रोबेबल एनालिसिस के तौर पे मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोविड इतना अग्रेसिव रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा रहता है लोगों को, क्योंकि अपने सिम्टम्स के डेट को जज कर पाना ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डे 6 हो और आप सोच रहे हो कि ये हमारा डे 1 है, तो ऐसे में आप जो डे 5 बताएंगे वो एक्चुअल में आपका डे 10 हो चुका होगा। तो इसीलिए इसका जो एनालिसिस है दैट शुड बी डन बाय अ स्पेशलिस्ट, बट एज अ होल टू बी अवेयर you should have this protocol to be followed. Just don't rush for a CT scan. CT scan is done for the patients who are very complicated. Their lungs has to be assessed, क्या मेडिसिन देना है, कितना रेस्पिरेटरी एनालिसिस करना है, पल्मोनोलॉजी ओपिनियन लेना है। सबसे कॉमन टेस्ट सबसे पहले कराना है CBC, डे 6 पे CRP should be less than 1. If raised, don't worry, 1 to 6 is also normal. Up to 10 is also normal. Sometimes it is raised in day 9 or 10. Less than 25 is also normal. Up to 25. If it is up to 25, your healthcare provider will give you the respected medicines regarding that. A rising CRP titer is the first alarm that should alert each and everyone, because that is the start of the whole game. Rising CRP titer will decide your complication of the COVID. CRP अगर आपका पहले दिन 5 है, 6th 7th डे आपका 15 दिन अगर वो 50 हो गया है होना है और आपका कोविड कॉम्प्लिकेट होने वाला है। CRP इज द मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ये बताता है कि कोविड के साथ में आपको बैक्टीरियल निमोनिया तो नहीं होने लगा है। तो CBC, CRP और चेस्ट एक्सरे। CT स्कैन 9वें-10वें दिन के बाद। सर हेलो सर, एक्चुअली आज सुबह से नई दुनिया में एक कटिंग आई थी, मतलब पेपर की कटिंग थी, उसमें एक इन्फॉर्मेशन थी कोविड से रिलेटेड, जिसमें उनने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है एम्स के डायरेक्टर, उनने ये कहा था कि CT स्कैन को मतलब जल्दी स्टेज पे करवाना बहुत डेंजरस हो सकता है कोरोना के लिए। तो सर ऐसा क्यों, मतलब CT स्कैन से भी क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? CT स्कैन का जो मशीन होता है वो एक क्लोज्ड कैंपस में रखा रहता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 23 to 27। दैट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इन अ कोविड। और जो मशीन होती है वो होती है स्टील की, आयरन की, जिसपे कि कोविड की जो लाइफ है वो होती है 28 days। So keeping all these facts in mind, if you are having a rapid test negative, if you are having your RT-PCR negative, just a mild symptom, but you are well capable of doing the CT scan financially, you are well
aggressive to treat yourself and you are running to have a CT scan, you are exhausting your patient, dehydrating your patient, you are making a long queue, and you are not doing CBC and CRP and chest X-ray. That is going to decide the whole scenario of the COVID. तो CT scan आप खुद अपनी मर्जी से करवा रहे हैं और basic investigation नहीं करा रहे हैं. So by this way, you are complicating the whole COVID treatment. तो इसलिए क्या है कि आदमी ये सोच रहा है कि CT scan is a diagnostic modality. It is not going to treat your COVID. It may cause dangerous things to your attenders जो आपके साथ में जा रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनका CT स्कैन अपन करवा रहे हैं और CT स्कैन कराने के टाइम पे हम वहाँ पे खड़े हैं, अंदर हैं, हो सकता है कि अपन री इन्फेक्ट हो जाए वहाँ पे. अपन अभी हो सकता है कि कोविड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कफ कोराइजा हुआ, क्योंकि अपन एक ऐसे फेज में है जहाँ पे कि कई सारे वायरसेस इस टाइम पे एक्टिवेटेड हैं. हर्पीज वायरस, ये वो, थोड़ा बहुत फ्लू लाइक सिम्टम हुए, सेटल हो गए. वायरल लोड अपन को कम मिला था, बहुत छोटा वायरल लोड किसी के कांटेक्ट में आने के कारण मिला और अपनी बॉडी ने इम्यून रिस्पांस को कम कर दिया, उसको सेटल कर दिया और अपन डे 6 और डे 7 में है और अपन CT स्कैन कराने गए जहाँ पे कि पूरा फ्लोरा बना हुआ था, बहुत अच्छा खासा वहाँ पे कल्चर था कोविड का, और एक साथ बहुत सारा वायरस अपनी बॉडी में चला गया और अपनी बॉडी जो उसको सेटल कर रही थी वो पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया. तो CT स्कैन डे 6-7 पे आप प्रोएक्टिवली करवाएं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दूसरा, आप वहाँ पे जाकर अननेसेसरी एक्सपोजर ले रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल अपन टीकमगढ़ की बात करें, अपन यहाँ से सागर जाएं, अपन यहाँ से झांसी जाएं, तो जो पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, इतना पैनिक में है, वहाँ पे उसको आप पूरा 8-9-10 घंटे का एक पूरा अच्छा खासा बॉडी के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं. और एक तरफ हम बात कर रहे हैं रिकवरी की और एक तरफ स्ट्रेस दे रहे हैं. तो इस सिनेरियो में अपन को CT स्कैन पे ध्यान देना है. नो डाउट CT स्कैन इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन बट शुड बी डन only when indicated, not as a proactively कि हाँ CT स्कैन करा लो जल्दी से. Okay sir, thank you. I also want to ask, जैसे अभी आलिया ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था that she is scared of vaccination, और एक टाइप के लोग हैं जो ये बहुत एक्साइटेड है वैक्सीनेशन के लिए कि भाई अब वैक्सीनेशन हो गई तो अब तो अपुनिश भगवान है, अब हमें कुछ भी नहीं होने वाला है. तो शुड वी स्टॉप टेकिंग प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड? जैसे अभी इजराइल में भी जैसे आपने बताया 54% लोग वैक्सीनेटेड हो गए, तो अब लोग बिना मास्क के घूमना शुरू हो गए वहां पे. तो क्या वैक्सीनेशन के बाद का कैसा सिनेरियो रहेगा? देखिए क्या है, वैक्सीनेशन के बारे में एक पुलिट्जर फिनोमिना होता है. किसी भी पैंडेमिक में एक वैक्सीनेशन एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कि हम एक दोबारा से हाइटेंड वायरस रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आदमी यही जो मेंटालिटी है ना, मास्क से परेशान हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग से परेशान हो जाता है, भरा बैठा है, एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है जल्दी से वैक्सीन लगे और मैं रॉकेट बनूं. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको दोबारा से परेशान करने की तरफ लेके जाती हैं. वैक्सीन का थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. वैक्सीन जो है दैट इज एन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन. आपकी मसल के अंदर एक इंजेक्शन लगता है. इंट्रामस्कुलर वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर IgA एंटीबॉडीज को नहीं बनाती. IgA एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होती हैं, इसको याद मत करिए, ऐसे समझिए कि आपकी जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं उसमें IgA एंटीबॉडी आपको हेल्प करती हैं फाइट करने के लिए. तो वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगने के बाद बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपका वायरस के साथ कॉन्टैक्ट होगा. वायरस आपके 2-3 दिन के कॉन्टैक्ट में आपको हल्का सा इल करेगा, लेकिन वायरस का तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. लेकिन वायरस के कारण जब बॉडी वीक होगी तो फिर बैक्टीरिया का निमोनिया आपको हो सकता है. तो बैक्टीरियल निमोनिया से आप एक्सपोज रहेंगे. और अगर वायरस का पैंडेमिक चल रहा है और इनकेस आपका वैक्सीनेशन हो चुका है और आपको ये नहीं पता है कब बाहर जाना है, क्या जाना है, तो आप अपना वायरल लोड इतना ज्यादा अगर ले लेंगे मास्क हटा के, ओवर एक्सपोज होके, कि वो डे 1 और डे 2 पे ही इतना ज्यादा वायरल लोड आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा कि वही आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होगा. तो वैक्सीनेशन सिर्फ आपको एक जो एक्सट्रीम कोविड कॉम्प्लिकेशन की सिचुएशन उससे बचाता है. कोविड आपको फिर भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, लेकिन कोविड के बाद जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो हो सकता है. टू बी ऑन अ सेफर साइड, व्हाई शुड नॉट वी कीप कंटिन्यूइंग द मास्क. और दूसरी बात ये होगा
एक लाइन इसमें और है, जैसे मुझे वैक्सीनेशन हो रखा है, मैंने मास्क नहीं लगाया, मेरे अंदर वायरस आ गया, मैं इन्फेक्ट हो गया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, कोई भी हमारे भैया के हैं, इसके हैं, उसके हैं, लेडीज हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अब मेरे अंदर वायरस है, वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन मैं उसका कैरियर हूँ क्योंकि मैंने तो अंदर ले लिया। अब उसके बाद मैं वहां गया, मैंने उनके सामने खांस दिया, तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन मैंने ले जाके बांट दिया, तो उनको हो सकता है, तो स्प्रेड तो हो ही रहा है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन तो रखना ही है, अपने को नहीं बचना, अपन को दूसरे को भी बचाना है। अपन तो भगवान है, लेकिन 33 करोड़ भगवानों को भी मेंटेन करना है अपन को, अकेले इकलौता भगवान नहीं बचना अपन को। यस सर, माय क्वेश्चन इज क्लियर एक्चुअली। मुझे एक और चीज पूछनी थी कि ये जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये कितनी इफेक्टिव है? मतलब कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक इफेक्टिव रहेगी, या फिर उस टाइम के बाद हमें दोबारा लेना पड़ सकती है वैक्सीन? देखिए क्या है, अभी जो वैक्सीन अपन लगा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सारी जो है 2 फेज में इनका ट्रायल हुआ है। नॉर्मली फेज 3 फेज 4 ट्रायल होता है। फेज 2 ट्रायल सबसे पहले ये वैक्सीन बनाई गई, आज के पहले मम्स की वैक्सीन 1965 में बनी थी, जो कि इतनी जल्दी अवेलेबल हुई थी। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बोलते हैं इसको। अच्छा, अब जो लॉन्गिविटी है वैक्सीन के बाद आपकी इम्यूनिटी का, इसके ऊपर कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना। इसको अपन ऐसे मान सकते हैं, किसी भी एक पॉपुलेशन को अपन 60 to 70% अगर वैक्सीनेट कर दें, तो फिर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएंगे जो कि अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी को ओवर पावर करें। 60-70% अगर अपन उसमें अचीव कर लें, अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर ये होगा कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो तो कम कर ही देंगे। तो कितना दिन तक अपन को इम्यूनिटी देगी, इसके बेसिस पे कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है। परसों नरसों एक स्टडी आई है जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है कोविड से, तो आपको 3 months to 6 months तक इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन के द्वारा जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बनी है उससे मिलेगी। अगर वैक्सीनेशन होगा तो ये मान के चलिए कि 1-2 साल तक तो आराम से आपको इम्यूनिटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर वायरस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम म्यूटेशन नहीं करता है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सडन एक दिन के अंदर ही कॉम्प्लिकेशन की कोई स्टेट थर्ड वेव में नहीं लेके आता है, तो वैक्सीन आपको अभी तो बचाएगा ही। अभी अगर अपन वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ओरल वैक्सीनेशन आ जाए जिसको कि लगाना इजी हो, यूटिलाइज करना इजी हो। तो सेम वैसा ही है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड कम हो गया है तो उसको ब्लड चढ़ना है, तो उसका एक सिंपल सा फैक्ट होता है कि ब्लड तो 7-8 दिन ही चलता है जो चढ़ता है, लेकिन उस 7-8 दिन में पेशेंट हमारे पास रहेगा और अपन आने वाले समय में उसको या तो एक और ब्लड दे देंगे या फिर जो ब्लड जहां से लॉस हो रहा है उसको कम कर देंगे। सो विल गेट अ टाइम फ्रेम टू मैनेज आवरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट वैक्सीन इज डूइंग, एंड इट इज डूइंग इन अ वेरी वेल वे। और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। यस, थैंक यू सर। ओवर टू यू इशिता। Anyone else? Hello. Hello, sir. I have a Yes, question. Prajwal. सर, जैसा आपने बोला कि अभी अगर वायरस म्यूटेट नहीं करता है, अभी हमें ये इंफॉर्मेशन है कि वायरस म्यूटेट कर चुका है, यूके के स्ट्रेन्स हैं हमारे यहाँ, डबल म्यूटेंट है। तो उस केस में जो सिम्टम्स हैं, नॉर्मल सिम्टम्स से जो एडवांस सिम्टम्स है वो क्या है? नॉर्मल कफ, फीवर, फ्लू, इनसे हटके। म्यूटेशन एक देखो क्या है, म्यूटेशन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर स्प्रेड होगा, फैलेगा, मल्टीप्लाई करेगा, छोटे छोटे म्यूटेशंस होंगे जो एक्यूमुलेट होंगे और फिर एक नई स्पीशीज को दे देंगे जन्म। पूरा का पूरा कोविड वायरस ही एक म्यूटेटेड फॉर्म है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस से तो अपन बहुत पुराने समय से जी रहे हैं साथ में, बट ये एक म्यूटेटेड कोरोना वायरस है। तो म्यूटेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अपने यहाँ ट्रिपल म्यूटेंट तक आ गया है। पहले जो अपन को फेज 1 में मिला था कोविड, उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन रेट कम थे, जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो 6 से 7 दिन का था, और अपन का जो कॉम्प्लिकेशन टाइम था वो 10-12
दिन का था जब लंग इन्फेक्ट होते थे, आपका जो कांटेक्ट पीरियड था पहले आधे घंटे का था, अब कांटेक्ट पीरियड 5 मिनट का बचा है, और आपका जो कॉम्प्लिकेशन टाइम है वो 72 आवर्स का बचा है। कई बार 72 आवर्स में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, और स्प्रेड बहुत ज्यादा है। अब ऐसा हो गया है, पहले ये बोला जाता था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अब इस कमरे में खांस रहे हैं, दूसरे कमरे में इन्फेक्ट हो जा रहा है, तो एयर बॉर्न हो गया है, एयर में सर्वाइवल टाइम बढ़ गया है उसका। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस अपन को एक्सपेक्टेड है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ अ लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू मेक वो अपना जो मशीनरी है, जो अपनी लाइफ की स्पीशीज का पूरा जो सिस्टम है, वो नेचर के और फेवरेबल करता चला जाता है, टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, सबसे ज्यादा उसकी बढ़ जाए ऐसा। तो इसलिए वो अपने आप को डिवाइड करे, अपने आप को मल्टीप्लाई करे, आपकी बॉडी में वो मैक्सिमम रहे, आपकी मशीनरी को मैक्सिमम यूटिलाइज करे, इस डायरेक्शन में वो अपने आप को ग्रो करता ही जाएगा। और फेज 2 में हमने उसका एक बहुत ही भयावह रूप देखा है। फेज 2 में भयावह रूप इसलिए देखा है क्योंकि पहले अपन ने लॉकडाउन बहुत पहले लगा दिया था, अभी क्या है लॉकडाउन नहीं लग पाया, और वी आर इन अ कम्युनिटी स्प्रेड। हमें ये नहीं पता कि जो मुझे वायरस लगा वो कहाँ से आया। पहले हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाते थे, अब तो हर घर में कोविड है, हर एक दूसरे घर में कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो वी आर इन अ कम्युनिटी फेज। तो कम्युनिटी फेज में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा है, तो जो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो भी ज्यादा हो गई हैं। तो इस वजह से आपको म्यूटेशन मिल रहा है और अभी और मिलेगा। एंड द म्यूटेशन विल बी फेवरेबल टू द वायरस ओनली, नॉट टू अस, बिकॉज जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है वो तो उसकी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। डार्विन का जो लॉ था, चार्ल्स डार्विन ने जो एक लॉ बनाया था कि नेचर जो होती है पॉजिटिव म्यूटेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है, नेगेटिव म्यूटेशंस तो अपने साथ समय के साथ खत्म हो जाती हैं। जैसे छोटी गर्दन के जिराफ भी हुआ करते थे, बड़ी गर्दन के जिराफ भी हुआ करते थे, लेकिन नीचे की घास जब खत्म हो गई तो छोटे वाले तो अपने आप खत्म हो गए, तब सिर्फ बड़ी गर्दन के जिराफ बाकी हैं। तो ऐसे ही कोविड जो कि अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर पाए, वही बचेगा और फिर वही मल्टीप्लाई करेगा। जो माइल्ड फॉर्म था वो तो अपने साथ धीरे धीरे खत्म ही हो जाए। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसमिशन दोनों को रोकना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कम हो जाएं। ओके सर, तो इसके लिए मतलब हम और ज़्यादा डेडली लीथल सिम्टम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि और ज़्यादा म्यूटेट होने वाला है वायरस। और ज्यादा म्यूटेंट्स आएंगे तो फिर ये होगा कि अपने जो सिम्टम्स हैं वो और बढ़ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ट्रांसमिशन और ज्यादा विग्रस हो सकता है, और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन रेट और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है इन द थर्ड वेव। ओके, थैंक यू सर।